ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ କିଛି ପଲିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇଛେ ଏବଂ ଏଇ ପଲିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 36ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇଛେ କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 100 ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପସନ୍କୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିକି ଯିବା ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ହେଉଛି ହୁ ଇଜ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ହେଲା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ହେଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଥାର୍ଡ ଅପସନ୍ ହେଲା ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏବଂ ଡିରେ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଏହା ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା ତୁମର ହେଉଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ହେଡ୍, ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ବିଧାନିକର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖ୍ୟ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିଦେବା। ଏଇଠି ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ସେ ଦେଲା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି, ସେ ହେଲା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହେଡ୍ ନା କି ତୁମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ହେଡ୍। କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ହେଡ୍ ହେଲେ ଆମର କିଏ? ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହେଡ୍ ହେଲେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ବେଶୀ ଥାଏ ସେଟା ଥିଲା ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ। ବୁଝିପାରୁଛ? କେବଳ ନମିନାଲ୍ ହେଡ୍ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ହେଡ୍, ନମିନାଲ୍ ହେଡ୍ ବି ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ନାମମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଲେ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆରିର ମୁଖ୍ୟକୁ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ସେ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୁଖ୍ୟ। ଏଠି ଚାରିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଆନାଲାଇଜ୍ କଲେ। ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହେଡ୍, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ନମିନାଲ୍ ହେଡ୍ ବା ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୁଖ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ। ସେହିଭଳି ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଲା ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ବଡି ତାର ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଏଇଭଳି ଆନାଲାଇଜ୍ କରି କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସବୁ କିଛି ସହଜ ଲାଗିବ କରିବା ପାଇଁ। ସେଗୁଡ଼ା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ହୁଇଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟେନ୍ ଦି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଅଛି? ପାର୍ଟ ଆଇ ଦେଇଛି, ପାର୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ଦେଇଛି, ପାର୍ଟ ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ ଦେଇଛି, ପାର୍ଟ ଆଇ ବି, ମାନେ ପାର୍ଟ 1, 2, 3, 4 ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି, ମୌଳିକ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଅଛି ବୋଲିକି ଏଠାରେ ସେ ପଚାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ସି, ପାର୍ଟ 3ରେ। ପାର୍ଟ 3ରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଯେଉଁ ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଆମର ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ୟାର ଚାରିଟି ଅପସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିଦେବା। ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଖିଦେବା। ଚାରିଟା ଅପସନ୍ଟି ହେଲା ଯେ ପାର୍ଟ 1 ଦେଇଛି ୟୁନିୟନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଟେରିଟୋରି, ସଂଘ ଏବଂ ତାର କ୍ଷେତ୍ର। ପାର୍ଟ 1ରେ ସଂଘ ଏବଂ ତାର କ୍ଷେତ୍ର, ପାର୍ଟ 2ରେ ନାଗରିକତା ସିଟିଜେନସିପ୍, ପାର୍ଟ 3ରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ପାର୍ଟ ଆଇଭିରେ ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି। ଚାରିଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଚାରିଟା ଅପସନ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆନାଲାଇଜ୍ କଲେ ଯେ ପାର୍ଟ 1ରେ ୟୁନିୟନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଟେରିଟୋରି, ପାର୍ଟ 2ରେ ସିଟିଜେନସିପ୍, ପାର୍ଟ 3ରେ ଅଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଆଇଭିରେ ଅଛି ବା ପାର୍ଟ 4ରେ ଅଛି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି। ୟାର ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆଲୋଚନା ଅଛି, ଆମେ ଖାଲି ଏଇ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିଯିବା। ତାପରେ ଡିପିଏସ୍ପିରେ ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି। ଡିପିଏସ୍ପି କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା? ଡିପିଏସ୍ପି ଆସିଥିଲା କେଉଁଠି? ଡିପିଏସ୍ପି ଆସିଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସମ୍ବିଧାନରୁ। ସେଇଭଳି ମୌଳିକ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ମୌଳିକ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି ସେଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା? ମୌଳିକ ଅଧିକାର କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା? ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆସିଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ୟୁଏସ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆସିଥିଲା। ସିଟିଜେନସିପ୍ ନାଗରିକତା କେଉଁଠି ଆସିଥିଲା? ନାଗରିକତା ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଇ ନାଗରିକତା, ଏକକ ନାଗରିକତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଆପଣଉଛନ୍ତି। ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରି, ଆମର ଯେଉଁ ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଟା ଆମେ କାନାଡ଼ାରୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। The concept of single citizenship in India has been adopted from the constitution of which country? ଭାରତର ଏକକ ନାଗରିକତାର ଧାରଣା କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଏରେ ଅଛି ୟୁଏସ୍ଏ, ବିରେ ଅଛି କାନାଡ଼ା, ସିରେ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଡିରେ ଅଛି ୟୁକେ ବାଇ ବ୍ରିଟେନ୍ ବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍। ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କୋଉଟା କୁହନ୍ତୁ? ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ତ ଦେଖିଲେ। ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍। ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି। ଏହାର ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ
देशरू कौन कौन आम आनी जा तापर देखे यूएस रु आसी डुआल सिटीजनशिप द्वैत नागरिकता कारण सेटिकार व्यवस्था भितर तो फेडराल सिस्टम ना फेडराल सिस्टम रे तांकर राज्य मानकर गोटे नागरिकता नवाक पड़े आउ देश पे गोटे नागरिकता नवाक पड़े किंतु भारत वर्ष रे एकक नागरिक व्यवस्था अच्छी जोटी गोटे लोक राज्य पे अलग कि देश पे अलग नागरिकता नहीं पारिबो नाही जोटा कि ब्रिटेन ले अच्छी ठीक अच्छे कानाडा कौन आनी आम फेडराल सिस्टम फेडरेशन विथ स्ट्रंग सेंटर माने देख जोटी अमेरिका रे सेंटर स्टेट समान अधिकार थिला बेले किंतु जो आमर जो यूनियन ऑफ गवर्नमेंट करा जायछि सेठी कोन सेंटर को अधिक गुरुत्व दिया जायछि अधिक स्ट्रंग करा जायछि एटा ला फेडरल स्ट्रक्चर हम कनाडा रो आमे आनी चंदी जो आयरलैंड रो कोन आचंदी आयरलैंड आमे डीपीएसपी मु कहले आउट गला नीति निर्देशक सिद्धांत आमे नीति निर्देशक सिद्धांत केउडा आनचंदी जो पार्ट आईवी रे अछि सेउडा आमे आनी चंदी ब्रिटेन रो सॉरी आयरलैंड रो ठीक अछि सेबा सिंगल सिटीजन एकक नागरिक व्यवस्था जोटा आम यूके रु आनी जोटि कि राष्ट्र गोटे ही प्रमाणपत्र रहियो ना कि अधिक प्रमाणपत्र रहिबो ठीक अच्छे आम यही चारोटी क्वेश्चन को एनालाइज करि पड़िबा जे आगामी परीक्षा को कौन भी क्वेश्चन आदि बाद जीवनी ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा The minimum age of a person to be eligible for election as the president of India भारतर राष्ट्रपति भाव में निर्वाचित होगापाई जड़े व्यक्ति सर्वनिम्न बयस केते हेबा आवश्यक चार्टा ऑप्शन देछि 25 30 35 40 या सठिक आंसर टी होछि आपनकर 35 आपनकर राष्ट्रपति निर्वाचित होबाकू हेले आपनको मिनिमम 40 बयस 35 बयस हेबाकू आवश्यक ठीक अच्छे या पर जीवा ऑप्शन गुड़ को 25 वर्ष बयस रे कौन तुम 25 वर्ष बयस जो मिनिमम एज फॉर मेंबर ऑफ लोकसभा सदस्य हाँपाई तुम 25 वर्ष बयस दरकार से भाई मिनिमम एज ऑफ राज्यसभा 30 वर्ष दरकार से भाई मिनिमम एज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर हाँपाई मुझे कहली ये आपंकर 35 वर्ष आवश्यक अच्छी 40 वर्ष कौन एज आम कन्स्टिट्यूशन सेमती किसी मेंशन नहीं कि आवश्यक नहीं टोटाल आमर 25 30 एवं 35 वर्ष आमर व्यवस्था करा जायछि ठीक अच्छे जब नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाई व्हिच प्रेसिडेंट प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट संसद रे उभय गृहर मिलित अधिवेशन अध्यक्षता किए करती ये चारोटी ऑप्शन देछि प्रेसिडेंट देछि वाइस प्रेसिडेंट देछि स्पीकर ऑफ लोकसभा देछि प्राइम मिनिस्टर देछि या भीतर केउटा किए जे जॉइंट सिटिंग बोथ हाउस रे मीटिंग जो आमर जो गृह जो मीटिंग हुए तार अध्यक्षता करती या सठिक आंसर हूँ स्पीकर ऑफ लोकसभा बाचस्पति ही जो आमर जॉइंट सिटिंग हुए तार अध्यक्षता कर ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एवं प्राइम मिनिस्टर विषय में आम कि जाना चला प्रेसिडेंट होती समन दी जॉइंट सिटिंग माने प्रेसिडेंट डाकती जो आमर जॉइंट सिटिंग बसिया प्रेसिडेंट डाकती किंतु तार अध्यक्षता करती किए तार अध्यक्षता करती आमर स्पीकर ऑफ लोकसभा तेरा वाइस प्रेसिडेंट किए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अध्यक्ष को आम वाइस प्रेसिडेंट कही मुझे कहली स्पीकर ऑफ द लोकसभा काम कौन सी प्रिसाइड दी ओवर दी जॉइंट मीटिंग सी अध्यक्षता करती मिलित अधिकता माने जो मिलित बैठक हुए से प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट हेड मुख्य को सरकार मुख्य कहुए प्राइम मिनिस्टर को है सरकार मुख्य तेणु चारोटी ऑप्शन को आम यही एनालाइज करवा जहाद्वारा आगामी दिन में आसुवा कौन सी क्वेश्चन आम ठारू बाद कहीं जीव नहीं तब नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड द राइट टू एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया से कहूँ क्यों संवैधानिक संशोधन अधिनियम शिक्षा अधिकार को भारत में एक मौलिक अधिकार करिथिला व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड द राइट टू एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया चारोटी ऑप्शन अच्छी 42 अमेंडमेंट 44 अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट 91 अमेंडमेंट ये कौ संविधान संशोधन जोटा राइट टू एजुकेशन को आमको दर्शाई था यार सठिक आंसर हूँ 86
आमेंडमेंट 86तम संशोधन जोटा कि आमको अलाउ कला राइट टू एजुकेशन शिक्षा एक मौलिक अधिकार बोली संविधान रे। ठीक अच्छे यार ऑप्शन गुड़ाक आम देखी नवा एवं ताको एनालाइज मते कर दिया। 42तम संशोधन जो करा जाइतिला 42तम संशोधन कराइतिला आमर मौलिक कर्तव्य को जोड़ी फंडामेंटाल राइट्स राइट्स मौलिक अधिकार फंडामेंटाल ड्यूटी आड कराइतिला फंडामेंटाल ड्यूटी आड कराइतिला। से पूरा 44तम संशोधन आपण राइट टू प्रॉपर्टी जो थिला ताकू उच्छेद करा जाई 300 ए रे ताकू लीगल राइट भाव विवेचना करागला। से भाई ऑप्शन सी रे अच्छी 86 आमेंडमेंट जो कहली माने 21 ए जो आमर अनुच्छेद रखागला अनुच्छेद आर्टिकल 21 ए रे एटा मेंशन कराला फंडामेंटल राइट्स ला आमर एजुकेशन आमर फंडामेंटल राइट्स। 91 आमेंडमेंट कौन कला मंत्री परिषद आकार सीमित कला लिमिटेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साइज मिनिस्टर मान जो मंत्रिमंडल जो परिषद केते ही पारियो तार गोटे व्यवस्था बनैला 91 आमेंडमेंट जोटा कि आमर मंत्री माने केते रहियो गोटे गवर्नमेंट चलिया पई हेने सेटा मेंशन करा जाइछि। तेणु एही भली ऑप्शन को हमें पढ़ी पढ़ी जिबा जा द्वारा कि हमर ई आगामी दिन क्वेश्चन गुड़ाक भल हेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा हु इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा राज्य परिषदर पदाधिकारी अध्यक्ष किए। चारिटी ऑप्शन अच्छी प्राइम मिनिस्टर स्पीकर ऑफ लोकसभा वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट। सठिक आंसर होची वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा राज्य अध्यक्षता करती प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति कहुए वाइस प्रेसिडेंट कहुए। ठीक अच्छे एवं 4टा ऑप्शन चलते आलोचना करवा। 4टा ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर कही आगु प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट सरकार मुख्य स्पीकर है प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा तापर वाइस प्रेसिडेंट है एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। धारा 64 अनुजाई कौन कर जो आमर चेयरमैन कराई राज्यसभा प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्र मुख्य को प्रेसिडेंट आम कही हेड ये 2टा क्वेश्चन आपको ध्यान देवाक पड़ो। हेड ऑफ गवर्नेंस है गवर्नमेंट है कौन प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ स्टेट कहले प्रेसिडेंट ये 2टा को आपको लक्ष्य करा पड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन जावा ये एनालाइज कर पढ़ने कौन क्वेश्चन बाद जीवन। ठीक अच्छे तो क्वेश्चन दीजिए बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वेयर द फंडामेंटल ड्यूज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान ले क्यों संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य गुड़ी को जोड़ा गला। ठीक अच्छे जोड़ा जाइथिला। ठीक अच्छे तो क्यों जो आमर आमेंडमेंट द्वारा जोड़ा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाइथिला। 4टा ऑप्शन देछि 42 44 86 61 जो मौलिक कर्तव्य आमको जोड़ाला क्यों संविधान ले। राइट आंसर हूँ 42तम संशोधन 1976 यहाँ गोटे मिनी कन्स्टिट्यूशन आम कही था जो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा होता। तेज ये जो 4टा ऑप्शन अच्छे आम टे नजर करनवा। अच्छा मु तो कहली पार्ट आई भी भाग ए 4 जो जोड़ी थे गुड़ाक मोर 42तम संशोधन जो आमर मौलिक कर्तव्य को जोड़ी फंडामेंटल ड्यूटी से पूरा 44तम संशोधन राइट टू प्रॉपर्टी अधिकार को संपत्ति अधिकार को हटाई दिगला। से 86तम अधिनियम राइट टू एजुकेशन व्यवस्था को लागू करा जोड़ा 21 ए रे आमर व्यवस्था कराला राइट टू एजुकेशन को। 61 आमेंडमेंट रे रिड्यूस भोटिंग एज करागला जो भोटिंग एज थिला सेटा थिला 21 रु ताको 18 को अणागला 21 रु ताको 18 को अणाला 61 आमेंडमेंट रे जोटा कि रिड्यूस दी भोटिंग एज करागला जो आमर 61 आमेंडमेंट रे। ठीक अच्छे तापर जो नेक्स्ट क्वेश्चन को यही भाई एनालाइज कर सांग मैंने पढ़ले कौन से प्रोब्लेम नहीं मैं जोड़ी रुहतु मुझे भल भाव में पढ़ेबी। ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ दी प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी भारतीय संविधान क्यों अनुच्छेद जातीय जरूरकालीन परिस्थिति घोषणा सहित जड़ित। ये जो 4टा ऑप्शन अच्छी क्यों आर्टिकल टी जातीय जरूरीकालीन नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 आर्टिकल 356 आर्टिकल 360 आर्टिकल 368 जो जातीय इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी आम क्या कहवा सठिक आंसर है 352 आमर संविधान
ହେଲେ ତିନୋଟି ଆମର ଅଛି କୋଉଟା କହିଲ ଯେଉଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆମର ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆମର ହେଉଛି 352ରେ। ତେଣୁ ଆଉ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିନେବା ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଆମର 352 ହେଲା ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ତାପରେ 356 ହେଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସୁପାରିଶ କେଉଁ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଆପଣ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ହେଲା ସରକାରିଆ କମିଶନ, ଗୋଟେ ହେଲା ଫୁଞ୍ଚି କମିଶନ, ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂ କମିଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଶାହା କମିଶନ। 4ଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ 4ଟା ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଏଟା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ? ଯେଉଁ ଆମର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କେଉଁ କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂ କମିଟି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂ କମିଟି ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ୟାର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେବା। ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆନାଲାଇଜ୍ ହେଇଯିବ। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କ'ଣଟା ଦେଖିବା, ଦେଖ କହିଦେଉଛି, ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ସରକାରୀ କମିଶନ ହେଇଥିଲା, ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ରିଲେସନ୍ ଟୁ ସେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ କମିଶନ। ପୁଞ୍ଚି କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଇ ଅଲସୋ ରିଲେଟେଡ୍ ଦି ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନ୍, ସେଇ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ। କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବିତ୍ତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ କିପରି ମଜବୁତ କରିହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ 2ଟା କମିଶନ ଅଛି, ଗୋଟେ ସରକାରିଆ କମିଶନ, ଗୋଟେ ହେଲା ପୁଞ୍ଚି କମିଶନ। ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂ କମିଟି କମିଶନ, ଆମେ ଯେଉଁ ଏନ୍ସାର କହିଲେ ସେଇଟା କେଉଁଟା? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍। କ'ଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ କିଏ? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂ କମିଟି। ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂ କମିଟି। ସେଭଳିଆ ଶାହା କମିଶନ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଶାହା କମିଶନ କରିଥିଲେ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ଶାହା କମିଶନଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ଯେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେତେ ସମୟ କେଉଁଭଳି କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ତାର ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚାଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଶାହା କମିଶନ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଟପିକ୍କୁ ଏଇଭଳି ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସବୁକିଛି ରହିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫର୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ବିକମ୍ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା। ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେତେ ବୟସ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 18, 21, 25, 30। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା ହେଉଛି 25 ବର୍ଷ। 25 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ୟାର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ଏଠି ଦେଖିଦେବା। ଦେଖା, 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର କ'ଣ? 18 ବର୍ଷ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ସେ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବ। ଭୋଟ୍ ବୟସ, ଭୋଟିଂ ଏଜ୍ 18 ବର୍ଷ ହେଲା କଥା ଭୋଟିଂ ଏଜ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଯେତେବେଳେ 21 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 21 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆମର 21 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଲୋକାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଲଢ଼ିପାରିବା। ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଲୋକାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନରେ ବୟସ ହେଲା 21 ବର୍ଷ। 18 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, 21 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ଆଦି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍ ହେଉ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ 21 ବର୍ଷରେ ଲଢ଼ିପାରିବେ। ସେଇଭଳିଆ 25 ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର? 25 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ମେମ୍ବର ଅଫ୍ MLA ଏବଂ MP, ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 25 ବର୍ଷର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ 30 ବର୍ଷ କ'ଣ? 30 ବର୍ଷଟା ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଏଇଟା ଜାଣି ରଖିଥାଅ। 30 ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବର ହେବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର ହେବା ପାଇଁ, ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା, ମେମ୍ବର ଅଫ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 30 ବର୍ଷ ହେବା। ଆଉ ବିଧାନ ପରିଷଦ, ବିଧାନସଭା ଗୋଟେ ଥାଏ, ବିଧାନ ପରିଷଦ, ବିଧାନସଭା ପାଇଁ 25 ବର୍ଷ, ବିଧାନସଭା ପାଇଁ 25, ବିଧାନ ପରିଷଦ ପାଇଁ 30। ମନେ ରଖ, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 35 ବର୍ଷ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଭଳି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଲା, ଅଣ୍ଡର ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଡଜ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କନସଲ୍ଟ ଦି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅନ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଫ୍ ଲ ଅର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଇନ କିମ୍ବା ତଥ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି?
ସେ ପଚାରିଲା ଅଣ୍ଡର ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କନସଲ୍ଟ ଦି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅନ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଫ ଲ ଅର ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ବୁଝିପାରୁଛ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେ କେଉଁ ସେ ଆର୍ଟିକଲ କହୁଛି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତି କିଏ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଅନ୍ତି। ସେଠି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଲା ଆର୍ଟିକଲ 124, ଆର୍ଟିକଲ 131, ଆର୍ଟିକଲ 143, ଆର୍ଟିକଲ 148। ଏଟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 143। ତ ଏଇ ବାକି ଆର୍ଟିକଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବାକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆର୍ଟିକଲ ରହିଲା 24। ଆଚ୍ଛା ଆର୍ଟିକଲ 24 କ'ଣ କହୁଛି? ଆର୍ଟିକଲ 24 କହୁଛି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛି। ସେଭଳି ଆର୍ଟିକଲ 131 କହୁଛି ଅରିଜିନାଲ ଜୁଡିକ୍ସନ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୂଳ ଅଧିକାର ଅଟେ ଅରିଜିନାଲ ଜୁଡିକ୍ସନ। ସେଭଳି ଆର୍ଟିକଲ 143 କହୁଛି ଆଡଭାଇଜରୀ ଜୁଡିକ୍ସନ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ପରାମର୍ଶଦାୟୀ। जो आम हिसाब से पढ़ले आर्टिकल 143 कौन जितेबले राष्ट्रपति सुप्रीमकोर्ट ठार परामर्श नियंती सेटा कौन आडभाइजरी कहते से परामर्श दियंती। तेणु आर्टिकल 143 सुप्रीमकोर्ट को अधिकार देती राष्ट्रपति को परामर्श देवाई। से आर्टिकल 148 आपणकर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये गोटे संवैधानिक पद। ये गोटे क्वेश्चन, ये कन्स्टिट्यूशनल बॉडी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी आपणकर गोटे कन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कन्स्टिट्यूशनल से आर्टिकल 148 मेंशन अच्छी। तो यही रिलेटेड करके आम पढ़ा जहाँद्वारा कि आपणकर क्वेश्चन आगू भल। नेक्स्ट क्वेश्चन जावा। The power of judicial review in India Constitution is based on which principle? भारतर संविधान न्यायिक समीक्षार शक्ति क्यों नीति आधारित कहले आपणकर भारतर संवैधानिक न्यायिक समीक्षार शक्ति क्यों नीति उपर आधारित? The power of judicial review in Indian Constitution is based on which principle? ऑप्शन गुड़ा आप देखी दिंतु। ड्यू टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीड्यूर एस्टाब्लिश बाय लॉ, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर। आगे चार्टा बुझंतु। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कौन? आईन उपयुक्त प्रक्रिया। प्रोसीड्यूर एस्टाब्लिश बाय लॉ आईन द्वारा स्थापित प्रक्रिया। रूल ऑफ लॉ कौन? आईन रो शासन और सेपरेशन ऑफ पावर क्षमतार पृथकीकरण। यार सठिक आंसर टी होची प्रोसीड्यूर एस्टाब्लिश बाय लॉ। एटा आपन टे कंफ्यूज होती ये सब एते जो टर्म गुड़ा ये जो यूज हेची एगुड़ा वास्तव रे कोन? सी कहला जे हमर जुडिशियल जो मैटर अछि जुडिशियल रिव्यू जोटा अछि ता मु क्लियर कर दो तार बेसिक फंडामेंटल आपन क्लियर कर जाद्रा कि किछि हबने। ड्यू यदि आईन उपयुक्त प्रक्रिया नुहे काहे कि जे कौन सी घटना यदि घटी थी मुझे बुझे दूसरी से समय जो आईन थी से अनुसार कार्यक्रम से प्रोसीड्यूर एस्टाब्लिश बाय लॉ से समय जो आईन थी से अनुसार जब किसी जजमेंट दि जाए तो तापर कौन सी जजमेंट तापर रिव्यू करें सुप्रीमकोर्ट। धर कौन सी घटना उपरे सुप्रीमकोर्ट प्रिवियसली गोटे मत देते से समय लॉ को लक्ष्य करके गोटे आईन एवं गोटे आसिले जी सुप्रीमकोर्टर जज सी किंतु से आईन को कहले एटा से जो से समय राय देते भूल से भूल सब्यस्त हेनी कारण आम संविधान कौच प्रोसीड्यूर एस्टाब्लिश आईन द्वारा स्थापित प्रक्रिया से समय जो आईन था से अनुसार जो न्याय देटा ही माने आमर कौन कहल माने आमर बाध्य हम कार्यकारी करने ना कि ड्यू प्रोसेस अर्थ लॉ अर्थ कौन वर्तमान क्यों आईन चली वर्तमान आईन अनुसार नुह ड्यू प्रोसेस लॉ अनुसार नुह। तेणु ये कथा को पूर्णतः बुझा आवश्यकता अच्छी। ठीक अच्छे रूल ऑफ लॉ सेटा तो डिफरेंस आईन शासन सेटा तो अलग सेपरेशन क्षमतार पृथकीकरण सेपरेशन ऑफ पावर से जो आमर जमी सेपरेशन पावर अर्थ कौन जे सेपरेशन पावर अर्थ कहले कौन हम जमी आम जुडिशियल एग्जीक्यूटिव आज लेजिस्लेचर ये तीनटा को अलग अलग पावर विकेंद्रीकरण कराई समस्त को निजस्व शक्ति नहीं चली था। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जा सॉरी यार एक्सप्लेनेशन आउटे भल देखीद देख
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जोटा कि कॉन्सेप्ट फॉलोअर फ्रॉम यूएसए आम यूएस टू आनी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीड्योर एस्टाब्लिश बाय लॉ एटा इंडियन प्रिंसिपल वेयर जुडिशियल रिव्यू वैलिडिटी ऑफ प्रोसीड्योर धारा 21 भारतीय नीति अनुसार एटा हमरो ग्रहण करा जायछि सेबडी रूल ऑफ लॉ आईन रो शासन प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस करियार शासन व्यवस्था हमरो अछि तो सेपरेशन पार्ट तो मुझे आपको कहली क्षमतार किपरि अलग अलग पृथकीकरण अच्छी तो नेक्स्ट क्वेश्चन जावा ये आम बुझा पड़ो टे समय लगे कि बुझा पड़ो रीट हेबियस कर्पस इश्यू टू अच्छा एटा टे धरी नहीं फ्रेम रो हेबियस कर्पस एटा सजे दउछि दी रीट ऑफ हेबियस कर्पस इश्यू टू हेबियस कर्पस कौन पाई एठारे हमरो इम्प्लीमेंट करा जाए तार ऑप्शन गुड़ा देखछन कमांड ए पब्लिक अथॉरिटी टू प्रोक्लेम ए लीगल ड्यूटी एक आईनगत कर्तव्य करने को आदेश देवा ऑप्शन बी रे प्रोहिबिट ए सबऑर्डिनरी कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुडिक्शन एक अधीनस्थ अदालत को अधिकार क्षेत्र को अतिक्रम करने को बारण करवा ऑप्शन सी रे देजी डिमांड दी प्रोडक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ पर्सन जने व्यक्ति शरीर को उपस्थापन करने को दाबी करवा से भाया ऑप्शन डी रे देजी क्वाश दी ऑर्डर ऑफ कोर्ट लोअर कोर्ट एक निम्न अदालत आदेश को कौन करवा आदेश को बातिल करवा तो ये जो चार्टा ऑप्शन देछि यार सठिक आंसर टी हूँ डिमांड दी प्रोडक्शन ऑफ बॉडी ऑफ ए पर्सन जन व्यक्ति को शारीरिक उपस्थापना करने को दाबी करवा कौन यार कहते हेबियस कर्पस जोड़ी थी जड़े व्यक्ति को तो निज शरीर भाव से उपस्थापना करने को कहा जाए ठीक अच्छे यार ऑप्शन गुड़ाक आम देखीदबा ये अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देखो ये दे दीजिए कौन दीजिए कमांड पब्लिक अथॉरिटी कमांड देगा परमादेश मांडामस कहा जाए प्रोहिबिट सबऑर्डिनेट कोर्ट प्रोहिबिशन बा प्रतिशोध लगे डिमांड ऑफ प्रोडक्शन हेबियस कर्पस तो यही भाई आमको क्वास ऑफ ऑर्डर सेट्रियोरी ये जो चार्टा आपणकर रही यहाँ आपन को भलिकी देखा पड़ो जहाँद्वारा कि आपन को सहज हम बुझापे तब नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हाट इज द फिक्स टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा काउंसिल राज्य परिषदर सदस्य निर्धारित कार्यकाल केते वर्ष मैंने बुझीपार व्हाट इज द फिक्स टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट आप विधान परिषद राज्यसभा परिषद निर्धारित जो केते समय हुए सठिक आंसर हो 6 वर्ष 6 वर्ष यहाँ राइट आंसर ठीक अच्छे यार एटा कौन करा ये तब नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सप्लेनेशन गुड़ा मुझे कहीदे तथापि कहते 5 वर्ष है आपणकर लोकसभार समय काल है 5 वर्ष 6 वर्ष है राज्यसभा विधान परिषद विधानसभा भी 5 वर्ष विधानसभा लोकसभा 5 वर्ष राज्यसभा राज्य परिषद है 6 वर्ष आ 4 वर्ष सेमती किसी ना नॉट फिक्स तो किसी ना छाड़ नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर एंड लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया भारत सरकार सर्वोच्च आईन अधिकारी एवं आईन परामर्शक किए कहना जाना मुझे कहीदे ऑप्शन मत लगुच सी हम कारण अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये 4टा ऑप्शन दे सॉलिसिटर जनरल देती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देती अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लॉ मिनिस्टर एम कहीं नुह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया
करेक्ट आंसर। और बाकी सब आम साथे देखीदे तार ऑप्शन गुड़ा एनालाइज करदे। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल किए जान? सॉलिसिटर जनरल है सबऑर्डिनेट टू दी अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल अधीन काम करनी सॉलिसिटर जनरल। चीफ जस्टिस हेड ऑफ द आमर जुडिशियरी तो चीफ जस्टिस ये तो आप जानले। तापर आपणकर ये है अटॉर्नी जनरल आपणकर आगुरी कही हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 रे वर्णना कराई केते आर्टिकल 76 से बनाई लॉ मिनिस्टर तो आपणकर गोटे पॉलिटिकल हेड जोड़ा मंत्री जंग बनाते लॉ मिनिस्टर एटा आपण तो सब जानते लॉ मिनिस्टर विषय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ पंचायत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो कह संविधान क्यों भाग में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वर्णना करा जाए? ऑप्शन तो अच्छी सब 8 9 9 ए। ठीक अच्छे और पार्ट एक्स एक्स आई एक्स ए आई एक्स भी थर्ड यार सठिक आंसर है आपण आई एक्स आर्टिकल 9 रे भाग 9 रे आपणकर कौन पंचायत एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विषय वर्णना करा जायछि। अच्छा आम यार पुंखानुपुख बुझा पुंखानुपुख कौन बुझा आस बुझे दूसरी ये पुंखानुपुख बुझा चार्टा ऑप्शन सब एनालाइज करिए ना। पार्ट थर्ड आई रे जो भी थर्ड आई रे 8म भाग रे कौन देला केंद्र शासित अंचल माने यूनियन टेरिटोरी। पार्ट आई एक्स कौन कहला पंचायत राज म्युनिसिपालिटी भली पंचायत राज व्यवस्था। ठीक अच्छे पार्ट आई एक्स कौन देला म्युनिसिपालिटी पौरपालिका 74 73 74 आप बुझे 73 है पंचायत राज संशोधन 74 है म्युनिसिपालिटी बुझिपारे। आउ गोटे कथा कौन कहली एटा है आई एक्स एटा है आई एक्स ए यही मन रखा पड़ो बुझल। तापर है पार्ट एक्स शेड्यूल ट्राइब एरिया अनुसूचित जाति अंचल पार्ट एक्स कौन शेड्यूल ट्राइब एसटी एरिया को पार्ट एक्स कहुए। चार्टा कथा को मुझे कहीदेली मन आउ थे कहूँ भी आई है 8 है यूनियन टेरिटोरी 9 है पंचायत 10 9 ए है कौन म्युनिसिपालिटी 10 है एसटी पुणी मन रहीगला। तापर 73 है पंचायत राज 74 है कौन म्युनिसिपालिटी 1976 अमेंडमेंट रे हेइतिला। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जा। बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी कौ संवैधानिक संशोधन रे रिमूव कराइतला हे लिखि देछि क्यों संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति अधिकार मौलिक अधिकार तालिकार बाद पड़ा दि जाइथिला। ठीक अच्छे बाद दिया कौटा संपत्ति बाबद कह ये आपंकर दे 24 42 44 52 सठिक कौटा कह राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव हो गला सठिक है ऑप्शन सी 44तम अमेंडमेंट 44तम अमेंडमेंट रे आपणकर प्रॉपर्टी की हटे दिगला। आ बाकी अमेंडमेंट गुड़ा सब देखिए ना नहीं देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जा कौन देखिए ये कह। अच्छा ये देखी तो 24 आपणकर देछि कौन को 24 आप 24 कहला देख 24 संशोधन 24 अमेंडमेंट जोटा जी मौलिक अधिकार संशोधन क्षमता 24 अमेंडमेंट देला मौलिक अधिकार संशोधन कर अफेम्ड पार्लियामेंटरी पावर एंड आर्म फंडामेंटल राइट्स 42 देला कौन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42 की कह जाए 42 कौन कह जाए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से भाया आपणकर
चौरालीस कौन है 84 महीना कौन 84 कौन कहली जे आपणकर प्रॉपर्टी अधिकार को एठू हटै दि जाइए कौटारू 300A को प्रॉपर्टी अधिकार हटै दी लीगल राइट बन दी 300A ठीक अच्छे आईनगत अधिकार करागला कौन करागला तो आईनगत अधिकार करागला धारा 300 क आईनगत अधिकार है क अर्थ 300A क्वेश्चन पचार कौ आर्टिकल आईनगत अधिकार अच्छी 300A रे 52 कौन 52 है आंटी डिफेन्स लॉ कौन है आंटी डिफेन्स लॉ आंटी डिफेन्स दल बदल निरोधी आईन बुझे आंटी डिफेन्स लॉ माने है जोटा कि संविधान आम 10th अनुसूची अच्छी सेटा कौन आंटी डिफेन्सन माने शिड्यूल मुझे कहीदे शिड्यूल 10 रे 42तम आमेंडमेंट रे आंटी डिफेन्सन लॉ को ये करागला दल बदल विरोधी आईन ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ये ही पढ़ा बुझल 22 नंबर क्वेश्चन है व्हिच एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट एक राज्यर राज्यपाल किए शपथ पाठ कराती हु एडमिनिस्ट्रेटर द ओथ ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट किए कराती कौन 4टा ऑप्शन अच्छी ऑप्शन देखी दिंतु ऑप्शन गुड़ा पढ़ी दिंतु प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस कंसर्न हाईकोर्ट वाइस प्रेसिडेंट किए करती या सठिक आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाईकोर्ट माने राज्यपाल को पुणी शपथ पाठ किए करें कौन आप भावुं कि राष्ट्रपति आसिए राष्ट्रपति नुह सेठिकार हाईकोर्टर मुख्य विचारपति ही शपथ पाठ कराती किए कराती शपथ पाठ कराती चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाईकोर्टर मुख्य विचारपति कराती ठीक अच्छे तो यही ही बुझा को पड़ो पिला माने अच्छा प्रेसिडेंट काम कौन प्रेसिडेंट अपॉइंट करते प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को अपॉइंट दे गवर्नर राज्यपाल को नियुक्त करती चीफ जस्टिस चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कौन चीफ मिनिस्टर गोटे स्टेट हेड अच्छा बुझीपार है चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्टर मुख्य विचारपति कौन काम से गवर्नर कौन कहते गवर्नर शपथ पाठ कराती कौटी ये मुझे कही आर्टिकल 159 आर्टिकल 159 आर्टिकल 159 से ओथ दियंती ठीक अच्छे अच्छा तो वाइस प्रेसिडेंट तो एथिरे का सहित जड़ित ना किसी लेन देन ना क्या सहित ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया द प्रिएम्बल of Indian Constitution was amended by which amendment act? Preamble of Constitution of India was amended by which amendment act? भारतीय संविधान मुखबंध प्रिएम्बल को क्यों संशोधन अधिनियम रे द्वारा संशोधित होता है कह तो पढ़े कहीद ऑप्शन गुड़ा कहीदे 1 ना 7 ना 42 ना 44 कौटा आंसर है 42 हम मतलब 42टा मारिद 42 ऊपर क्लिक जयगला क्लिक 42 राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा एवं या सब बुझा नेक्स्ट जो आप यार ऑप्शन ये गुड़ा सब बुझदवा आम ठीक अच्छे कौन दे ऑप्शन गुड़ा देखिए फास्ट आमेंडमेंट मुझे 9 शेड्यूल आर्डर जो प्रथम 9 शेड्यूल को ऐड कराला प्रथम 9th अनुसूची को ऐड करागला प्रथम संशोधन में 7th आमेंडमेंट कौन कला रिकग्निशन ऑफ स्टेट 7th आमेंडमेंट स्टेट को रिकग्नाइजेशन करागला जो स्टेट गुड़ा सब गठन है रिकग्नाइजेशन करागला कौटे 7th आमेंडमेंट से भाई आपणकर 42 आमेंडमेंट कौन करागला कह 42 आमेंडमेंट रे आपणकर प्रिएम्बल को आमेंड करा जायतिला एटा बुझो प्रिएम्बल को आमेंड करा जायतिला 42 आमेंडमेंट ठीक अच्छे तापर है 84तम आमेंडमेंट 84तम आमेंडमेंट कौन कौ रिलेटेड 84तम आमेंडमेंट कौ रिलेटेड तो फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार
कौन है फंडामेंटाल राइट्स मौलिक अधिकार पोषण 44 तो संशोधन अमेंडमेंट तो यही गुड़ा ही पढ़ा पड़ो डिटेल्स एनालिसिस करके जहाँ हो भएस टिके खराब आसुथब कारण माइक व्यवहार होना जेणु जो मैंने व्यस्त हेबे नहीं जमा धीरे धीरे या एनहेंस करा बहुत भल आकार रे डिटेल्स रे आपन कह ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जा हुई द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील ऑफ इंडिया भारत सर्वोच्च अपील अदालत केउटी तो देखी खाली कहीदब हाई कोर्ट ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट ना गवर्नर ऑफ कोर्ट गवर्नर्स कोर्ट सठिक आंसर कहीदि सठिक आंसर कौटा सठिक आंसर है आपणकर सुप्रीम कोर्ट ही आपण सब बड़ अदालत ना ठीक अच्छे स्टेट तो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो आप जिला मानक रही है सुप्रीम कोर्ट पूरा देश रे गवर्नर कोर्ट बेले बेले कौन डिसीजन बेले गवर्नर निज तरफ कोर्ट डकाती गवर्नर सेमती किसी ना कि डकाती आ ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जा अच्छा हु हैज द पावर टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज ऑफिस भारत राष्ट्रपति को पदवी हटेबार क्षमता कहार अच्छे यार ऑप्शन गुड़ा देखी दिंतु सुप्रीम कोर्ट पाखे अच्छी कि प्राइम मिनिस्टर पाखे अच्छे पार्लियामेंट थ्रू इम्पिचमेंट ना कैबिनेट पाखे अच्छे या तो देखा तो आप कही सारी यार सठिक आंसर है पार्लियामेंट थ्रू इम्पिचमेंट आम सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को विरुद्ध महाभियोग द्वारा हटई पार महाभियोग द्वारा पदरू हटई पार जोटा कि पार्लियामेंट हम ठीक अच्छे तो यही ही बुझा पड़ो जा बुझेद आपन सुप्रीम कोर्ट ये सब कही सब कही केवल से ये मेंशन कर दूसरी पार्लियामेंट आर्टिकल 61 कौन कहे इनफ्लिजमेंट कौन जो आप महाभियोग विषय महाअभियोग विषय कौन महाअभियोग विषय अभियोग भल को लेखे हो ठीक है महाअभियोग विषय कही था तो यहीटा ही जानिया दरकार ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जा क्वेश्चन देखा द quorum to constitute a sitting of Lok Sabha in is हाँ लोकसभा एक अधिवेशन गठन आवश्यक सर्वनिम्न सदस्य संख्या के quorum क्वेश्चन टे भली फ्रेम है मैंने भितर पशि जेहतु ऑप्शन गुड़ा बहुत लंबा ना से हाँ द quorum to constitute a sitting of लोकसभा लोकसभार बसवा quorum केते आवश्यक कह सठिक आंसर हूँ 1/10 ऑफ टोटाल मेंबर है quorum आपणकर हो पार ठीक अच्छे अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जी ना ऑप्शन गुड़ा देखिए कौन या ऑप्शन सेमती नथियो तथा कहीदे ऑप्शन गुड़ा है धारा 100 अनुजाई उभय ग्रुप में आवश्यक धारा तो यहाँ संविधान धारा अच्छी जोटा कि 1/10 जी पर्सन थे तो 1 भाग 10 भाग लोक है गृह एक अधिवेशन डकई हम बुझिपार यहाँ करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन जा Which article of the Constitution deals with the establishment of Financial Commission? या भितर कौटा आपण फाइनेंशियल कमिशन एस्टाब्लिश करे कह आर्टिकल 280 आर्टिकल 315 आर्टिकल 324 आर्टिकल 338 केउटा करे कह कहमी
फाइनान्स कमिशन 280 राइट आंसर ठीक अच्छे। अच्छा बाकी ऑप्शन गुड़ा टे बुझीदवा दरकार नहीं हाँ बुझीदबा ये मुझे कहली कौन कहली 280 है फाइनेंशियल कमिशन स्टेट एवं सेंटर भितर फाइनान्स डिस्ट्रीब्यूट करे काम है फाइनेंशियल कमिशन काम कौन स्टेट और सेंटर भितर जो पैसा नवा देवा अच्छी कर आर्टिकल 300 कौन कह यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन अनुच्छेद 315 पब्लिक सर्विस कमिशन विषय बुझाए आर्टिकल 324 इलेक्शन कमिशन जोटा कि आपको यहाँ बुझा पड़े सब इम्पोर्टाट देख फाइनान्स कमिशन 280 315 है कौन आपणकर पब्लिक सर्विस कमिशन 324 कौन इलेक्शन कमिशन आ 338 कौन नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट यहाँ बुझा पड़ो चारिटा को यही चार्टा भारी इंपोर्टाट परीक्षा गोटे ही पड़ो कौड़ बाद जीवन ये पड़े आइदर फाइनेंस कमिशन 280 315 है यूनियन सर्विस कौन से यूपीएससी जोड़ा आईएएस ओएस गुड़ा होती है यूपीएससी बुझिपार 324 इलेक्शन कमिशनर ठीक अच्छे कमेंट कह इलेक्शन कमिशनर एवं किए अच्छा ठीक अच्छे 338 है नेशनल कमिशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जा हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया भारत राज्य सरकार संविधान मुख्य किए तो तुम निहाती कहीदवा कथा कह कह चीफ मिनिस्टर कि गवर्नर कि चीफ सेक्रेटरी कि प्रेसिडेंट कि ना करेक्ट आंसर है गवर्नर गवर्नर ही तुम राइट आंसर ठीक अच्छे गवर्नर ही राइट आंसर बाकी गुड़ा तो आम सब जाने ना प्रेसिडेंट तो आमर कौन स्टेट हेड आम स्टेट अर्थ कौन जो आम राष्ट्र मुख्य चीफ मिनिस्टर राज्यर मुख्य चीफ सेक्रेटरी का सरकार अंडर काम करें चीफ प्रति स्टेट गोटे चीफ सेक्रेटरी थे तीस राज्य सरकार अंडर काम करती मुख्य शासन सचिव मुख्य सचिव तो ये आनालाइज कर पढ़िया चल जा यार बुझा यहाँ तो किसी बुझा दरकार नहीं कौन बुझा खाली गोटे बुझे दूसरी देख धारा गुड़ा खाली मुझेदेवी आर्टिकल 353 153 अनुसार आर्टिकल 153 अनुसार आपणकर गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट बोली वर्णना कराई यहाँ मन रख बाकी गुड़ा तो मुझे सब कहनी कौन मन रखिए प्रेसिडेंट यूनियन ऑफ स्टेट हेड तो ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा आसला द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीड्योर एस्टाब्लिश बाय लॉ इज प्राइमरीली बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से कहला ये बुझ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीड्योर एस्टाब्लिश बाय द लॉ ये जो गारटा मुझे टाणी नहीं जो समय आईन बनाई से अनुसार ही लॉ को देखा प्रोसीड्योर एस्टाब्लिश को क्या करते आईन द्वारा स्थापित प्रोसीड्योर एस्टाब्लिश कौट आम सठिक आंसर टी है आप जापान रु प्रोसीड्योर एस्टाब्लिश बाय लॉ अमेरिकार कौन आम गोटे देखा ना नहीं देखा ना न देखी देव अमेरिकार आसी ड्यू प्रोसेस लॉ आईन चलुवा समय जो व्यवस्था है से परिवर्तन हुए जापान है प्रोसीड्योर एस्टाब्लिश बाय लॉ जोटा कि धारा 21 वर्णन कराई से भाई ब्रिटेन रु पार्लियामेंटारी सिस्टम आसी ब्रिटेन रु आमर कौन आसी पार्लियामेंटारी सिस्टम ब्रिटेन रु आसी पार्लियामेंटारी सिस्टम से सोवियत यूनियन रु फंडामेंटाल ड्यूटी आसी सोवियत यूनियन रु फंडामेंटाल ड्यूटी आसी देखरे कौड़ा तुम सब कहुच्छी पूरा गोटी गोटी आनालाइज कर खाली पढ़ी चल आ कि बाट ना तुम पढ़िया कला ठीक अच्छे तर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन जा यही तो ये तो जगह व्हिच फंडामेंटल राइट आल्सो अवेलेबल नॉट सिटीजन फॉरेनिंग इन इंडिया मौलिक अधिकार भारत नागरिक विदेशी अच्छा या भर कौ अधिकारटा अच्छी मुझे कहीदे ये कौ अधिकारटा अच्छी जोटा कि विदेशी मानक उपलब्ध यहाँ सठिक आंसर है राइट टू पर्सनल लिबर्टी जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्र अधिकार
ଆପଣ आर्टिकल 21 जोटा विदेशी मानक दि जाए ठीक अच्छे यहाँ पचार कौन कर क्वेश्चन हूँ फंडामेंटाल राइट ऑल्सो अवेलेबल नॉन सिटीजन फॉरेन इन इंडिया क्यों मौलिक अधिकार भारत जन अणनागरिक मन उपलब्ध से कथा मुझे कहली आपंकर धारा है 21 ए धारा 21 ए 32 है ना समस्त मिले तो ये सब ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द टर्म बजेट इज रेफर इन द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान रे बजेट शब्द किपरि सूचित हुए बजेट को कौन कहते फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कहते मनी बिल करते आर्थिक विवरणी वार्षिक आर्थिक विवरणी अकाउंटेंट आर्थिक विवरणी मनी बिल अर्थ बिल कौन कहते सठिक आंसर है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कहते एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा यही गुड़ा देखीद कि तार विवरण देखीद कह देखीद फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता गोटे जेनेरिक टर्म साधारण आम कह फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जेनेरिक टर्म एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट तो गोटे टर्म यूज आर्टिकल 112 धारा 112 सबूतक शब्द एनुअल फाइनेंशियल सब्जेक्ट धारा 112 रे कहा जाए ठीक अच्छे मनी बिल गोटे बिल जोटा स्पेसिफिक भाव अर्थ आधारित आइडेंटिफाई किए करती स्पीकर ऑफ लोकसभा ठीक अच्छे एवं किए अच्छा स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जा द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया समवर्ती तालिका सॉरी आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती तालिका इज टेकन फ्रॉम व्हिच constitution country the idea of concurrent list is taken from the constitution of which country से कही जे आपणकर जो समवर्ती सूची जो अच्छी से कौ देश रु निया जाइछि कौ देश रु निया जाइछि कौ देश रु निया जाइछि concurrent list जो अमेरिका की कनाडा की ऑस्ट्रेलिया की साउथ अफ्रीका की कोटा निया जाइछि सठिक आंसर है ऑस्ट्रेलिया आपणकर नि कौन आपणकर कनकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची आ चार्टा ऑप्शन देखीद कहूच आम अमेरिकार कौन नहीं गले फेडरलिज्म नहीं गले संघीयवाद राज्य आउ यूनियन भितर टिके प्रशासन विभेद रही फेडरलिज्म बुझ कनाडा रे इस्युडरी पावर अवशिष्ट क्षमता कनाडा कौन ना अवशिष्ट क्षमता इस्युडरी पावर एटा गोटा क्वेश्चन गुड़ा रे ऑस्ट्रेलिया ने कनकरेंट लिस्ट ए साथ पचार कनकरेंट लिस्ट तापरे साउथ अफ्रीका कौन आम नहीं गले प्रोसीड्योर ऑफ अमेंडमेंट केते आर्टिकल कराई 368 रे अमेंडमेंट एटा कोड साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीकार सब इम्पोर्टाट लोकटा किए जी अहिंसा को फॉलो करते नेल्सन मांडेला जी कि नॉन वायलेंस को फॉलो करी गोरा विषय रे निजर मत व्यक्त पोषण करते ये बहुत खराब बोली नेक्स्ट क्वेश्चन जा Who decided dispute regarding election of the president and vice president? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विवाद गुड़िकर समाधान किए करते यार सठिक तो अच्छी मुझे डायरेक्ट सठिक आंसर कहूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया Who decided to dispute regarding the election of the president or vice president किए करते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपंकर इलेक्शन कमिशन आउची 324 ठीक अच्छे युवा सब बुझा दरकार आउ सुप्रीम कोर्ट आसुची 124 बोधे मत लगुच 124 सुप्रीम कोर्ट बोधे
ऑप्शन गुड़ा सब देखिद ये सही ऑप्शन गुड़ा देते नेक्स्ट क्वेश्चन पलैया Who is the ex-office chairman of National Development Council? Who is the ex-office chairman of National Development Council? किए यार सठिक आंसर है एनडीसी रो अध्यक्ष किए प्रेसिडेंट की फाइनेंस मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर की भाइस प्रेसिडेंट की ना 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 या तो कई नुह हाँ या तो जने ना या तो किए एनडीसी है प्राइम मिनिस्टर आपणकर प्राइम मिनिस्टर हेले आपणकर अध्यक्ष नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी के स्थापना है कह कोई पार एनडीसी स्थापना है 1952 मसीह ठीक अच्छे प्राइम मिनिस्टर हेड है रे ठीक अच्छे किए पीएम बाबू आम किए अच्छे मोदी बाबू अच्छा मोदी मोदी जी एवं अच्छा ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा ये तो मुझे सब पढ़े कौन कर हाँ ये दीटा कथा कहीदे कौन कह फाइनेंस मिनिस्टर तो पैसा कथा पहचान करते राष्ट्र है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ एनडीसी एंड नीति आयोग भी चेयरमैन किए रही था एनडीसी नीति आयोग अध्यक्ष नीति आयोग के प्रतिष्ठा 2015 नीति आयोग के 2015 नेशनल डेवलपमेंट 1952 ये दुटार किए चेयरमैन रुहति आप प्राइम मिनिस्टर आमर ये उपराष्ट्र बाबू कौन करते सी तो चेयरमैन है कौन राज्यसभा ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जा व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट राज्य जो सब इलेक्शन हुए किए कंडक्ट करे स्टेट इलेक्शन कमिशन करे किए करे स्टेट इलेक्शन कमिशन करे ना कौन अच्छा ठीक अच्छे इलेक्शन कमिशन यहाँ कही तो 324 कही 324 मन रखी भारी इम्पोर्टान्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया The 73 and 74 Constitutional Amendment Act was primarily related to 73 कौन अरे कह फंडामेंटल राइट एंटी डिफेंशन लॉ सेल्फ गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म यार सठिक आंसर है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट राइट आंसर है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जा सब कही सारे फास्ट आम लैंड रिफॉर्म होता 73 पंचायत राज म्यूनिसिपालिटी 52 एंटी डिफेंशन लॉ फंडामेंटल राइट तो आम आमेंडमेंट फंडामेंटल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन जा तो लास्ट क्वेश्चन सरीगला क्वेश्चन किंतु मु सब बुझेदेली जो मैंने यार पीडीएफ यार टेस्ट दबा चाहते से मो सहित जोड़ा पड़ो और से सब प्रोवाइड करी तेणु क्लास वॉइस टे खराब आसो कहीं टेंशन नब नहीं आगू बहुत भले आसो पूरा लागिक रुह पूरा झमेला करवा पढ़िया भल रकम ठीक अच्छे रही नमस्कार समस्त को पढ़ी चल बढ़ी चल थैंक यू।